हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन किवें तुसीं सारे आई होप कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਡ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਆਊਟ ਆਫ 30th ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਹਸਨਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਹਸਨ। ਹਸਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਸਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? MCA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਹਸਨ। ਹਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਈਟ ਸੀ ਬਟ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਵੁਡ ਹਸਨ ਸਟੱਡੀ। ਹਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸੀ? ਓਨਲੀ ਨੀਅਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸੀ ਬਟ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਕਾइंड्स ऑफ टीचर वाज सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की सी? काइंड एंड लविंग सी। ओके ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਵੁਡ ਹਸਨ ਬੈਗ ਫॉर ਅਟੈਂਡੈਂਸ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਇਨ ਅ ਪਿਟੀਫੁਲ ਮੈਨਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੁਡ ਹਸਨ ਮੇਕ ਟੂ ਟੀਚਰ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਸ਼ ਡਿਡ ਨੋਟ ਬੋਦਰ ਮਚ ਐਂਡ ਸੈਡ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਵੁਡ ਟੀਚ ਹਸਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਨਸ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਸਨਸ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹਸਨਸ ਫਾਦਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ एट्थ क्वेश्चन किया वो स्टार्टेड क्राइंग एट द एंड ऑफ द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हसनस मदर ओबियस है वही रोन लग पैंदी सी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखो हाउ ओल्ड वाज हसन वैन ही मेट द नरेटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। किन्ने साल का सीगा? 35 ईयर का हो गया सीगा। ओके फिर जाकर नरेटर ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? CD ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ। ਓਕੇ 10th क्वेश्चन देखो हसन हेल्ड डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम himself। 11th की है हसन बिकम ए सेल्समैन ऑफ डैश हाई स्कूल सॉफ्टवेयर ठीक है। स्कूलों के सॉफ्टवेयर बेचता फिरदा सीगा, जिदा कि डी ऑप्शन उन्होंने दिता है CD फिल्म सीडीज। वो सीडीज बेचता सीगा पर फिल्म दी सीडीज नहीं बेचता सी, वो स्कूल सॉफ्टवेयर दी सीडीज बेचता सी ठीक है। इस करके कन्फ्यूज नहीं होना है। उस तो बाद देखो 12th की है हसन वॉज टोल्ड बाय हिज फादर टू लिव सेपरेटली ठीक है। किसने क्या सीगा? फादर ने क्या कि तू अलग रह ला। उस तो बाद देखो 11th की है द सेंटेंस ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड वॉज स्पोकन बाय डैश टू डैश। हसन ने सुधा मूर्ति को कहे सी ठीक है। उस तो बाद देखो 14th क्वेश्चन की है एक्सीलेंस डज नॉट कम बाय द एक्सीडेंट बट बाय प्रैक्टिस। तो 15th क्वेश्चन हसन वॉज ए डैश स्टूडेंट और टॉल हैंडसम ब्राइट। हसन वॉज नॉट ए ठीक है। हसन की नहीं सीगा? रेगुलर नहीं सी, बाकी टॉल हैंडसम ब्राइट तो सीगा ही, रेगुलर नहीं सी। तो 16 क्वेश्चन किया हु इज द ऑथर ऑफ लेसन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। कौन सी? सुधा मूर्ति। थानू सारे पता ही है ना। 17वां क्वेश्चन देखो व्हाट इज नरेटर्स प्रोफेशन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम ठीक है। ये जो नरेटर सी ਉਹਦਾ प्रोफेशन की सी? वो कंप्यूटर साइंस ਦੀ टीचर सी। ओके ਉਹ टीचर ਸੀਗੀ, स्टूडेंट डॉक्टर सेल्समैन नहीं, टीचर सी कंप्यूटर साइंस ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो 18th क्वेश्चन किया हसन केम फ्रॉम डैश फैमिली ए एफिलियंट फैमिली ठीक है। और तो बाद देखो 19 क्वेश्चन किया हसन वॉज ए डैश बॉय। हसन टॉल हैंडसम एंड ब्राइट सी ठीक है। हुण हसन किदां दा सीगा? ओ बॉय पूछा नहीं किदां सी, ये नहीं पूछा। नैक्सट देखो 20th क्वेश्चन सुधा मूर्ति जनरली टुक द फर्स्ट क्लास शेड्यूल एट कदों लेंदी सी फर्स्ट क्लास? 9 AM ठीक है, 9 AM और द वन आफ्टर 10 AM ठीक है। दो क्लासा लेंदी सी, फर्स्ट लेंदी सी 9 AM एंड सैकेंड 10 AM ठीक है आफ्टर 10 AM। तो देखो हाउ मैनी सिबलिंग्स हसन्स हैव। हसन्स दे कितने सिबलिंग्स सीगे?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 22 ਕੀ ਹੈ, ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਬੈਚ ਫਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਰਸਟ ਬੈਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹਸਨ ਵਾਜ਼ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर ਡੈਸ਼ ਈਅਰ 3 ਈਅਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 24 ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਸਨਸ ਡੈਸ਼ ਵਰ ਨਰਡਸ, ਕੌਣ ਨਰਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 25 ਕੀ ਆ, ਹਸਨ ਅਟੈਂਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਸ ਉਹ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 27 ਕੀ ਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹਸਨਸ ਹੈਡ ਵੈਨ ਹੀ ਮੈਟ ਦ ਨਰੇਟਰਸ ਇਨ ਆਫਿਸ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ACD, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ CD ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ CD ਸੀ, ਉਹ CD ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦੇਖੋ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਡੈਸ਼ ਟੀਚਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਕੀ ਆ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਫੈਲਟ ਡੈਸ਼ ਫॉर ਹਸਨ ਸੈਡ ਫॉर ਹਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ ਡੈਸ਼ ਮੈਟ ਦ ਨਰੇਟਰ ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਡਰੈਸਅਪ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਲੰਪ ਐਂਡ ਬਾਲਡ, ਕੌਣ ਸੀ, ਹਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ MCQs। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਵਨ ਡੇ ਆਫ ਦ ਕੰਸਰਨਡ ਫਿਲਿਪ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪਲੇ ਏ ਗੇਮ ਆਫ ਬੇਸਬਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਸਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਫਿਲਿਪਸ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੂਮ ਫਿਲਿਪ ਸਟੋਲ ਹਿਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲਾਨ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸਰਕਸ, ਕੌਣ ਸੀ, ਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਾਈਨ ਬੈਂਡ ਕਿ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਉਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ फोर्थ क्वेश्चन किया, आफ्टर वर्किंग एट द बेकरी फिलिप डिड नॉट फील लाइक द प्लेइंग बेसबॉल बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड, ओके। और तो देखो 5th क्वेश्चन हैगा, व्हाट वाज द फिलिप्स प्ले इन कंसर्न, द वायलिन, ठीक है, वायलिन बजांदा सी वो। और तो देखो 6th क्वेश्चन किया, वो स्कॉल्डेड फिलिप एट द बेकरी, बेकर्स वाइफ, ओके। तो बाद देखो 7th क्वेश्चन, वो रिवेल्ड द न्यूज ऑफ फिलिप्स सिलेक्शन बाय ए सर्कस बैंड लीडर टू हिज मदर, किसने, एड्स मदर ने, उन्होंने दस दिता, वाह बेटे, दोस्त दियां मावां भी दसदियां, दोस्त दियां मावां ही दसदियां हुंदियां, मदर्स ही दसदियां हुंदियां, ठीक है। सो 8th क्वेश्चन देखो, वो गेव द शर्ट टू ए फिलिप्स फॉर द कंसर्ट, ठीक है, किने दिता सी, मिसिस इस्प्युता वाइफ ऑफ हिज म्यूजिक टीचर, अपने म्यूजिक टीचर गया सी तो उन्हें अपने वाइफ को भेजा, उसने फिर पिंस लगा के फिट करती सी उसकी कमीज में। और तो देखो 9th क्वेश्चन, वो वॉज चार्ली कौन सी, बेकरीज ऑनर। और तो बाद 10th क्वेश्चन, एज अ चाइल्ड फिलिप वांटेड टू बी ए म्यूजिशियन। और तो बाद देखो 11th क्वेश्चन, वो हैड डिसाइडेड टू जॉइन सर्कस, फिलिप ने डिसाइड किया सी। और तो बाद फिलिप लव्ड फुटबॉल डैश एंड बेकर वर्क, ठीक है, म्यूजिक, फुटबॉल का फुटबॉल, इट्स अ फुटबॉल। तो 13 क्वेश्चन देखो, डैश वाज अलाफ्टेड आफ्टर द वॉशिंगटन पोस्ट मार्च, ठीक है, कौन, फिलिप्स। तो बाद देखो 14 क्वेश्चन किया, नेम द न्यूज़पेपर विच हेल्ड एन ऐसे कंटेस्ट, the Washington Post, okay। 15th question, how old was Phillips when he accepted leadership of the Marine Band, ठीक है, 26 years old, ठीक है, 26 साल ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ ਮੈਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ।
16 क्वेश्चन देखो, फिलिप्स वर यूटिली डैश आफ्टर वर्किंग एट बेकरी। ठीक है, बेकरी विच काम करके उसमें कितना लगा, वो की हो गया सी एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्टेड हो गया मतलब बहुत थक गया उत्थे जाके। ओके, उस तो बाद देखो 17 क्वेश्चन, हु वाज द इनलिस्टेड एंड एज एन अप्रेंटिस टू स्टडी म्यूजिक। ठीक है, कौन होया सीगा? मिस्टर इजुप्ता, फिलिप्स फादर, मिस्टर इजुप्ता, नन ऑफ दिस यार, ये बच्चे थोड़ी ना सी। और तो बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स ही में भी है ना। 18वां क्वेश्चन क्या, डैश निम्बल फिंगर्स पिनड इनफ टक इन द शर्ट ऑफ द मेक इट अ फिलिप। ठीक है, मिसिस इजुप्ता सीगी जिहड़ी, उसने ना पिन उन लगा के ना फिंगर ना अपने उसने फिलिप दे ना शर्ट ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 क्वेश्चन देखो, जॉन फिलिप सोजा बिकम डैश ऑफ द मैरिन बैंड, लीडर बन गया सी वो। और तो बाद देखो 20th क्वेश्चन किया, फिलिप रोट मोर देन 100 डैश मार्चेस। ठीक है, उसने बहुत सारे मार्चेस लिखे। 21st, फिलिप स्टार्टेड टू अटेंड म्यूजिक क्लासेस इन हिज नेबरहुड। ओके, 22nd किया, द जॉब डैश वॉज मोस्ट टायरिंग फॉर फिलिप्स एट द बेकरी। उसके बाद 23rd किया, द वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर हेल्ड डैश कॉन्टेस्ट एन एसे कॉन्टेस्ट। ठीक है, 24th किया, इन द डिलाइटफुल ड्रीम फिलिप्स वॉज ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग ए लीडर ऑफ ए सर्कस बैंड। अथवा 25th है, when Phillips watching his father first parade में जो देखा, he vowed to become ए म्यूजिशियन। ठीक है, म्यूजिशियन बनना चाहे। ठीक है, उसके बाद देखो 26 किया, वॉशिंगटन वॉज फुल ऑफ बैंड्स ड्यूरिंग द अर्लियर 1860s। 27th, फिलिप देखो 27th किया, फिलिप लर्न टू प्ले डैश क्विकली द वायलिन। 28th किया, टू इल इरिटेड वो इल इरिटेड, किसने इल इरिटेट किया टू फिलिप एट द बेकर्स हाउस, किसने किया सीगा? द बेकर्स वाइफ, बेकर्स दी वाइफ ने किया सी। 29th किया, फिलिप वॉव टू स्पेंड हिज टाइम, किथे फिलिप लव टू स्पेंड हिज टाइम। ठीक है, कितने टाइम स्पेंड लव करता सी? प्लेइंग फुटबॉल एंड द वायलिन। ठीक है, तो 30th क्वेश्चन हैगा, फिलिप केम टू नॉन एज मार्च किंग, बाद चो मार्च किंग बन गया। ठीक है, बिकॉज ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ, ਬਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੌਜੀਕਲ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਨਾ ਹੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्रिएटिव, मतलब कि डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, अलग ही सोचना। सेकंड देखो, वेयर डिड द फार्मर एंड हिज डॉटर लिव्ड, कितने रहंदी सी? इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, थर्ड हैगा, द मनी लेंडर वॉज ओल्ड एंड अगली, बहुत ओल्ड एंड अगली सी। फोर्थ देखो, द टर्म लैटरल थिंकिंग वॉज कोइंड बाय एडवर्ड डी बोनो। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आ जाता होता है। ठीक है, एडवर्ड डी बोनो याद रखो लैटरल थिंकिंग का। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन किया, थॉमस वाज ए डैश, क्यों सी? मिलीनियर है ना, मिलीनियर सीगा। ते हाउ मच मनी डिड थॉमस बोरो फ्रॉम द बैंक, ये भी तुहानू याद रखना पैना, कितना लिया से उन्हें? सिर्फ $5000। ओके, और तो देखो डैश सेवंथ किया, वेयर वॉज द बैंक सिचुएटेड, बैंक कितने सी? इन द न्यूयॉर्क सिटी। 8th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड थॉमस स्टे अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क, 2 वीक ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬਸ। ਓਕੇ, ਦ ਥੋਮਸ 9th क्वेश्चन गया, थॉमस पेड डैश एज ए इंटरेस्ट टू द बैंक, $15 जस्ट, 15 दिन ਲਈ $15 ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ तो देखो 10th क्वेश्चन किया, व्हाट वाज द ब्रांड ऑफ थॉमस कार्स। ठीक है, किसी फरारी कार सी ब्रांड। ओके देखो 11th किया, वो इंट्रोड्यूस डे एंड नाइट मैचेस इन क्रिकेट। ठीक है, कैरी पाकर ने डे एंड नाइट मैचेस वो किया सी, इंट्रोड्यूस किया सी। ओके, सो नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन है, डैश एक्सपेरिमेंटेड विद 2 डिफरेंट कैप्टन्स फॉर द टेस्ट एंड वनडे मैचेस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेरिमेंट किया सीगा। और तो बाद देखो 13th क्वेश्चन किया, हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स लैटरल थिंकिंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, किसी ने नहीं लिखा है, याद रखियो, ये अडॉप्टेड है चैप्टर। ओके,
सो इंटरनेट तो लिया गया। और तो बाद देखो 14 क्वेश्चन, नाउ डेज डैश हैव बिकम ए रेज इन क्रिकेट, ठीक है, T20, ठीक है, T20 का क्रेज आए थे। तो देखो 15 क्वेश्चन किया, द फरारी कार वाज पार्कर इन द बैंक्स पार्क पार्क, ठीक है, इन द बैंक गैरेज फॉर सेफ्टी, कितने अंडरग्राउंड, ठीक है, फरारी कार ਨੂੰ अंडरग्राउंड पार्क कर दिता गया फॉर सेफ्टी। और तो बाद देखो 16 क्वेश्चन किया, द इंटेलिजेंट गर्ल वोन एंड चेंज एंड डैश सिचुएशन इनटू डैश वन, ठीक है, उसने इम्पॉसिबल सिचुएशन ਨੂੰ एडवांटेजियस वन विच बदल देता। ओके, और तो बाद देखो 17 क्वेश्चन किया, द फार्मर डॉटर नोटिस दैट मनी लेंडर हैड पुट डैश नबल इनटू बैग टू, ठीक है, टू पैबल आ यार, कितना मिस्टेकिंग ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਬਲ ਆ, टू पैबल बैग ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। और तो बाद देखो 18 क्वेश्चन किया, द गर्ल एंड थॉमस द मिलीनियर बोथ यूज डैश टू विन सिचुएशन, लैटरल थिंकिंग यूज किया दोनों ने, ठीक है। और तो बाद देखो 19 क्वेश्चन किया, व्हाट वाज द प्रपोजल गिवन टू द पुअर फार्मर बाय द मनी लेंडर, उन्हें की क्या सीगा, द फार्मर डेब्ट वुड बी वेब्ड ऑफ इफ द एग्री टू मैरी हिज डॉटर टू मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर ने कहा कि तेरे सारे ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ, ठीक है। तो देखो 20th क्वेश्चन किया, द वर्ड फोरगो मीन्स टू गिव अप, ठीक है, टू गिव अप। और तो बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लैटरल थिंकिंग। तो देखो 22th, द शार्प आइड गर्ल वाज डैश डॉटर ऑफ पुअर फार्मर, शार्प आइड गर्ल वाज डॉटर ऑफ पुअर फार्मर द डॉटर सी ना, टीचर दा थोड़ी ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन किया, थॉमस वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अमेरिका। ओके, 24 देखो, द गर्ल वुड हैव टू मैरी द मनी लेंडर इफ शी सेलेक्ट ए ब्लैक पीपल, ठीक है, जो ब्लैक पीपल पत्थर चुन लेंदी ना, फिर उन्होंने उस लैंडर ना मनी नहीं यार, उस मनी लैंडर ना मैरिज करना पैना सी, ठीक है। सो देखो 25th क्वेश्चन किया, द गर्ल न्यू दैट बोथ पेबल इन द बैग वर ब्लैक, ठीक है, उस मनी लैंडर ने चलाकी की सी कि बैग विच ना दोनों ब्लैक पेबल डाल लिया सी, तो उन्होंने कहा सी एक चूज करोगे तो ब्लैक ही निकलेगा ना, सो उसने लैटरल थिंकिंग यूज करके गर्ल ने जित लिया सी। थानू पता, स्टोरी पढ़ियो, देखियो कितनी इंटरेस्टिंग आ, पढ़ के देखियो, अज हुणी पढ़ना है। ओके, तो देखो 26 किया, व्हेन डिड थॉमस गो टू द बैंक टू द रिटर्न द लोन, किया आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, 15 दिन बाद चल गया वो लोन रिटर्न करने लिए। ओके, तो बाद देखो 27 किया, व्हाई डिड द मिलीनियर थॉमस टेक ए लोन फ्रॉम अ बैंक, he wanted to cheap and save parking for his costly Ferrari car। okay, और देखो 28 किया, where did Thomas live his new Ferrari, किथे, at the bank अंडरग्राउंड गैरेज, ठीक है, एट द बैंक अंडरग्राउंड गैरेज विच ना वो छड़ के चला गया अपनी फरारी कार नू, सेफ्टी बहुत सी ना उत्थे। तो 29 देखो, द बैंक एम्प्लॉइज आस्क थॉमस फॉर डैश सम सिक्योरिटी, सम सिक्योरिटी लिए फरारी कार रख देती थी। और तो देखो 30 क्वेश्चन किया, ठीक है, द फॉर्मर डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटैलीजेंट सी। सो इस पार्ट का थाडा लास्ट चैप्टर आ ऑन सेइंग प्लीज, ठीक है, याद रखियो एजी गार्डिनर ने लिखी हुई किया एजी प्लीज। ओके, एजी प्लीज नहीं यार, ऑन सेइंग प्लीज लिखा हुआ एजी गार्डिनर द्वारा इट्स बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, एजी गार्डनर ने लिखा है ऑन सेइंग प्लीज, मैं मिक्सअप करता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द राइटर ऑफ ऐसे ऑन सेइंग प्लीज, एजी गार्डनर। ओके, सेकंड किया, वू ट्रैम्प्ड अपॉन द राइटर टॉय, ठीक है, द बस कंडक्टर ने। और सो देखो थर्ड क्वेश्चन किया, वर्ड लाइक डैश एंड डैश कीप मशीन ऑफ लाइफ इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर, ठीक है, केड़ा, प्लीज एंड थैंक यू बोलिया करो। और तो बाद देखो क्या फोर्थ किया, अनकाइंड वर्ड्स आर मोस्ट पेनफुल दैन डैश इंजरी, ठीक है, फिजिकल इंजरी तो अनकाइंड वर्ड्स ज़्यादा पेनफुल है। आजकल लड़ाइयाँ मुंह करके होंगे ना, जवान करके,
ਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਓਏ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, a dash person can make even the gloomiest person cheerful, ठीक है। तो देखो सिक्स क्वेश्चन किया, द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर वॉज वेरी डिसेंट। सेवंथ क्वेश्चन है, बैड मैनर्स डैश द जनरल स्ट्रीम ऑफ लाइफ पॉइजन, ठीक है, पॉइजन है, ठीक है। एट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज नॉट कंपेल अस टू पोलाइट, ठीक है, लॉ। देखो नाइन्थ क्वेश्चन किया, द लिफ्ट मैन थ्रू डैश आउट ऑफ द शिफ्ट पैसेंजर नु सैड। टेंथ देखो, व्हाट डिड द लिफ्ट मैन वांट द पैसेंजर टू से, की कहना सी, प्लीज, ठीक है। सो 11th किया, डैश विल परमिट, जिद्दां ही परमिट आ गया इट्स मीन द लॉ आ, ठीक है। और तो बाद 12th देखो, व्हाट वुड द सिटी गटर्स रन विद इफ टोटल लिबर्टी इज गिवन, ब्लड, ठीक है। उसके बाद देखो 11th किया, द पेन ऑफ ए वाउंड टू आवर डैश में पॉइजन ए वोल डे, किया सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके बाद देखो 14 किया, वो बुलिड कैप्टन एब्सोल्यूट सर एंथनी एब्सोल्यूट, वाह। उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन किया, फैग किकेड द डैश पेज बॉय। 16 देखो, what types of damages do not get any allowances, ठीक है, फिजिकल नो, moral yes, intellectual yes, so option D is right, B and C, okay। so देखो 17 क्वेश्चन किया, what is the meaning of word sunshine in the lesson, cheerfulness, ठीक है, cheerfulness। और तो बाद देखो 18 क्वेश्चन किया, who said nothing clears up my spirits like a fine day, कौन ने, किड्स ने, ठीक है, किड्स ने किया सी। और तो बाद 19 क्वेश्चन हैगा, I never give the wall to the scoundrel, ठीक है, who said this word to Chesterfield ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, a man in the London street, okay, याद रखियो, man in the लंडन स्ट्रीट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ देखो 20th क्वेश्चन का, fill the blanks based on the information given in the chapter on the sing please। A ऑप्शन किया with our illness, B ऑप्शन किया with our jokes, C ऑप्शन किया with our ill humors, ठीक है, with our ill humors। और तो बाद देखो 21st किया, some conductors considers the passengers as dash natural enemies, okay। ਕਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਨੀਮੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਵਿਦ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਦ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 23rd, ਦ ਲਾਅ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਟੈਕ, यस, स्मॉल अटैक स्पिरिचुअल बैड माइंड्स तो नहीं अटैक कर सकती ना, लॉ सिर्फ सानू मटेरियल अटैक्स तो बचा सकती है। 24th देखो, व्हाट सर्व एज लिटिल कॉर्टिस, किहड़े हुंदे आ, वर्ड लाइक प्लीज एंड थैंक यू यूज किया करो, ओके। उस तो बाद 25th, who hurled the passenger out of the lift मैन, है ना, डैश ओ इज द मशीन ऑफ लाइफ सिविलिटी। तो बाद क्या, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिविलिटी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट की है टू एक्नॉलेज ए सर्विस, ओके। और तो बाद देखो साडा बी सैक्शन स्टार्ट होंदा है, ये साडे पोइम्स है, पोइम्स थानू पता किन्ने पोइम्स आने हैं, आई थिंक देखते हैं, चलो। तो बाद देखो प्रेयर्स ऑफ द वुड्स राइटर है नहीं गा, अनिनिमस, ओके, किन्ने लिखा है पता नहीं है। सो थानू एक पैसेज दिते जाने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੋਇਟਸ ਇਹ ਰੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਮੇ ਬੀ, ਸੋ ਪੋਇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਇਮ ਦੇਖੋ, ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਾਹਲੀਲ ਗਿਬਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਾਹਲੀਲ ਗਿਬਰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ हाँ, एक मैं दस देवां सेंट्रल आइडियाज़ की है ना पोएम दे, जिद्दां कि प्रेयर ऑफ वुड है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੁੱਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਰਮ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਮ ਅਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਓਕੇ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਹਲੀਲ ਗਿਬਰਨ ਨੇ, ਓਬਲਾ ਅਨੋਨੀਮੋਸਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੋਇਮ ਇਚੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਚੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਨਸ ਡਸ ਡਾਫਰ ਵੇ ਸਿਟਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਚੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪੋਇਮ ਆ ਵੰਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਵਰਸਟ ਡੇ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ ਵਾਜ਼ ਡੇ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਵਾਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਗਰਲ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ, ਕੌਣ ਸੀ, ਮਿਲੀ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਜ਼ ਏ ਕਾइंड हार्टेड एंड मिडल एज्ड एंड एन अथॉरिटेटिव वूमेन सी, ठीक है। और कुछ भी इत्थे विच हैगा ऑप्शन नहीं, बाकी सारे खराब आ। तो देखो फोर्थ ऑप्शन की आ, फोर्थ ऑप्शन हैगा मिस बीम डैश मैथड्स वर सिंपली येट यूनिक, की सीगा स्कॉलिस्टिक, ठीक है। स्कूल में जो पढ़ा रही सी ना वो बहुत ही यूनिक सीगा, स्कॉलिस्टिक। सो देखो उसके बाद हैगा फिफ्थ क्वेश्चन डैश एच ऑल द टाइम्स ऑन द ब्लाइंड डे, ठीक है, हेड। और तो बाद देखो सिक्स क्वेश्चन का हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर द स्कूल फॉर सिम्पथी, ईविस लुकास, याद रखियो ईवी लुकास ने लिखा आया। और तो बाद देखो सेवंथ क्वेश्चन है द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल्स, की सीगा मिस बीम स्कूल द रियल एम सी इट्स डैश सिविलाइजेस एंड डैश, ठीक है, किसी ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन, थॉटफुलनेस एंड सिविलाइजेशन, ह्यूमैनिटी थॉटफुलनेस एंड फ्रेंडशिप एंड थॉटफुलनेस, की सीगा कि इंसान विच ना आपां सिटीजन किदां दा बनाइए, ह्यूमैनिटी एंड थॉटफुलनेस, ठीक है। ह्यूमैनिटी सिटीजन एंड थॉटफुलनेस बनाना सीगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत वाले। उस तो बाद देखो नैक्सट क्वेश्चन, सो इसका आंसर की होना सीगा ह्यूमैनिटी एंड थॉटफुलनेस, सी ऑप्शन होना, ठीक है। सो नैक्सट देखो की है एट्थ क्वेश्चन द ब्लाइंड डे वॉज डैश डे मोस्ट डिफिकल्ट। नाइन्थ की है मिस बीम लेट द ऑथर टू वन ऑफ द डैश गर्ल बैंडेज्ड गर्ल, ठीक है। एट्थ टेंथ देखो द गर्ल टोल्ड द ऑथर दैट हर डैश वर प्रीटी गुड गाइड्स, ठीक है। और तो बाद देखो 11th किया ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे डैश चिल्ड्रंस वर बैंडेज्ड आइज, ठीक है, चिल्ड्रंस आइज वर बैंडेज्ड, ठीक है। और तो बाद 12th क्वेश्चन देखो ऑन द लैम डे, ठीक है, डैश ऑन द लैम डे द चिल्ड्रंस डैश वर टाइट, ठीक है, लेग्स। और तो बाद देखो 13 किया द नेम ऑफ गार्डनर वॉज पीटर। 14 क्वेश्चन हैगा द गर्ल विद द बैंडेज्ड आई फेल्ट डैश ऑन हर ब्लाइंड डे ऑफुल, ऑफुल कर दी सी, ठीक है, ऑफुल। और तो बाद देखो 15 किया वो वॉज वेयरिंग ए ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, ठीक है, मिली। 16 क्वेश्चन देखो वो वॉज द डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, कौन सी, बैरल सी। 17 क्वेश्चन किया विच कलर वॉज मिस बीम्स हेयर टर्निंग टू, किसी ग्रे, ओके। 18 क्वेश्चन देखो व्हाट इज द टाइड ऑन मेम्ड डे, एन आर्म, ठीक है। और तो बाद 19 क्वेश्चन किया
द गर्ल विद क्रचेस वॉज स्टैंडिंग अंडर विंडो। ओके, तो बाद देखो 20th क्वेश्चन है, the girl with bandaged eyes was being led carefully between the flower beds by a little boy of some dash years her junior 4 year। Okay, तो देखो 21st here the gardener was tying up dash in gardens, ठीक है, roses। 22nd देखो, the author was perplexed to see that children were not as dash healthy and active as he wished them to be, ठीक है, वो उन्हें लगा कि हेल्दी नहीं है, ठीक है, जिस तरह से देखना चाहते सोचा सी, ठीक है। 23rd देखो, मिस बीम एक्सप्लेन टू द ऑथर दैट चिल्ड्रन वर नॉट रियली हैंडीकैप्ड, क्या वो एक्चुअली ਵਿੱਚ हैंडीकैप्ड नहीं हैगा, ਇਹ जस्ट वो प्ले कर रहा है, कर रहे हैं, उन्होंने सिखाया जा रहा है। 24 देखो, द हेड गर्ल मिली वॉज एन ऑफुल डैश गर्ल इट्स अ डिसेंट। उसके बाद देखो 25 क्या, पीटर वॉज डैश मैन ए वेरी ओल्ड मैन। उसके बाद देखो 26 किया, द ऑथर हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, ठीक है। और तो बाद देखो 27 किया, हाउ डिड द ऑथर फील वाइल लिविंग मिस बीम स्कूल, ही वॉज सॉरी टू गो, ही वॉज सॉरी टू गो। ओके, याद रखियो। 28 किया, ऑन द डम डे द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज डैश ओनली एज द माउथ इज नॉट बैंडेज्ड, ठीक है, विल पावर। उसका 29th, मिस बीम वॉज वॉक अप एंड डाउन टेरेस with a tall girl named मिली गर्ल ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ, ठीक है। तो 38th क्वेश्चन देखो, the author felt that necessity of describing the surrounding to another make them more interesting। so second chapter देखो, the chameleon, बहुत ही घट बच्चों ने इस चैप्टर का नाम ही सुनिया होना, chameleon बहुत ही मतलब कि बढ़िया चैप्टर है, फिर भी ना ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ what was the hurricane प्रोफैशन, ठीक है, हरकिन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ प्रोफैशन ਕੀ ਸੀ, ਉਹ गोल्ड स्मिथ ਸੀਗਾ। ओके, तो देखो सेकंड किया, ओट चुमियोलो, ठीक है, ओट चुमियोलो वॉज ए पुलिस एसपी सीगा, पुलिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, नाम देखो कितना कितना दे गए। तो थर्ड देखो, डैश टुक द डॉग टू इट्स ऑनर, ठीक है, प्रोहर। फोर्थ देखो, द डैश अश्योर्ड हरिकिन दैट द ऑफेंडर विल बी पनिश्ड, पुलिस सुपरिटेंडेंट। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन किया, द पुलिस सुपरिटेंडेंट वाज वॉकिंग अक्रॉस डैश द मार्केट स्क्वेयर, एमसीक्यूज आया से सानू भी, ठीक है, द मार्केट स्क्वेयर। तो बाद देखो सिक्स क्वेश्चन का, चैमेलियन इज ए टाइप ऑफ लिजर्ड, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, हैरिंगटन सैड दैट बिकॉज ऑफ इंजरी ही वुड बी अनेबल टू वर्क फॉर ए वीक। तो देखो एट्थ क्वेश्चन किया, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द चैप्टर ए चैमेलियन, किसका नाम, एंटन चेकोव, एंटन चेकोव, याद रखियो। चैमेलियन सी एच तो याद रखो, सी एच तो चैमेलियन, सी एच तो चेकोव। ओके जी, आ गया था चेकोव, याद रखियो। तो देखो नाइन क्वेश्चन किया, वो वॉज येल्ड्रीन, ठीक है, वो वॉज येल्ड्रीन कौन सी, उसका रेड हेयर्ड पुलिसमैन। और तो बाद देखो 10th क्वेश्चन किया, व्हाट वाज द पुलिस सुपरिटेंडेंट और चुमिलियो कैरिंग अंडर हिज आर्म, ठीक है, ए पार्सल। तो बाद 11th किया, और चुमिलियो कितना दा नाम है, saw a dog run out of pitch gun, ठीक है, डैश टिम्बर यार्ड। और तो बाद देखो 12th, रिंकन डैश ब्लीडिंग राइट हैंड फिंगर। और तो बाद देखो 13 किया, वो वॉज ऑनर ऑफ डॉग, कौन सा ऑनर, जनरल्स ब्रदर वोल्डिमिर इवानिच, इवानिच सीगा, किदा नीच बंदे आए हुए इदा नहीं कहना, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है को 14 क्वेश्चन है, द डॉग वॉज जंपिंग ऑन हर डैश लेग्स 3 लेग्स, ठीक है। उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन है, हरिंगटन वांटेड कंपनसेशन फॉर फ्रॉम द ऑनर ऑफ द डॉग। 16 क्वेश्चन, who was the blame for incident in the end of the chapter, हरिंगटन। तो बाद देखो 17 क्वेश्चन है, what is the meaning of yelping, it's a crying in pain।
18 क्वेश्चन, वो वॉकिंग आफ्टर अचुकमलो रेड हेयर पुलिसमैन, ठीक है। 19 क्वेश्चन है व्हाट वाज द रेड हेयर्ड पुलिसमैन कैरिंग ए sieve full of gooseberries। 20th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन है हिया कि रैंकिन वाज नॉट ए हल्किंग हल्किंग पर्सन ठीक है। और तो बाद देखो किया 21st, व्हाट वाज द जनरल नेम्स, जनरल द नेम किसी जिगालोव ਸੀਗਾ। तो 22nd किया प्रहर वाज द जनरल्स कुक, प्रहर जनरल दा कुक ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो शुगर खत्म होने लगा चैप्टर। 23rd किया द टाइटल ए चैमेलियन रेफर्स टू ਔਰਚੁਕਮਲੋ ਔਰਚੁਕਮਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੈਮੇਲੀਅਨ ਚੈਪਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24th ਗਿਆ ਔਰਚੁਕਮਲੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਟੇਕ ਆਫ ਐਂਡ ਪੁੱਟਸ ਔਨ ਹਿਜ਼ ओवरकोट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25th ਗਿਆ ਸਕਿੰਟੀਏ, ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਕਿੰਟੀਏ told Okchumalo that Hurricane had put a dash in dog's face। सिगरेट ओ बापे सिगरेट पाया से मुंह थे, सिगरेट हाँ सिगरेट ही है यार, सिगरेट पाया था मुझे मुंह च बापे यार किन्ने चैप्टर हो गया, चैप्टर पढ़िया नहीं ना। सो एक बार तुम पढ़ लो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना और तो 26 का वो वाज चेजिंग द डॉग, चेजिंग द डॉग कौन करता सी हैरिंगटन। तो देखो 27th, which of the following statement is incorrect, Proher takes the dog to its owner, एक गलत गल है। और तो देखो पोली, ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है यार, फाइनली चैप्टर आए, इट्स लास्ट चैप्टर फॉर यू, ठीक है। सो देखो फर्स्ट किया व्हाट वाज पोलिस रियल नेम, सुलेखा नाम सी। वाह बेटे मौज कर दी तुमने तो। सुलेखा ए बोली 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 के तो ये हुए थे हाँ ठीक है। सो देखो सुलेखा नाम सी। सैकेंड किया पोली हैड डैश सिबलिंग्स, ਉਹਦੇ 6 सिबलिंग्स ਸੀ, ठीक है। 7th ਉਹ खुद ਸੀਗੀ, याद रखियो, ठीक है। थर्ड किया डैश वाज पोलिस फादर रामलाल, पोली ਦਾ फादर ਸੀ। पोली वाज डैश मंथ्स ओल्ड, किन्ने साल ਦੀ ਸੀ 10th मंथ ओल्ड ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਲ ਆਫ द कोट एंड डैमेज्ड ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन, ठीक है। वो मंजे तो डिगी एंड ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ डैमेज हो गया पार्ट से, उस करके थोड़ी भोली रह गई है वो, ठीक है। 5th क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज पोली व्हेन शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स 2 ईयर्स ਦੀ, ਜਦੋਂ 2 ईयर्स ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਗ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। सो ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। सो 6th क्वेश्चन देखो पोली मीन्स डैश सिंपलटन, ठीक है। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो 7th क्वेश्चन ਹੈਗਾ पोलिस वोल बॉडी एक्सेप्ट हर आईज, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ डिसफिगर्ड हो गया, ठीक है। डीप ब्लैक पॉक्स मार्केट, ठीक है। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 8th क्वेश्चन ਹੈਗਾ नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर पोली बी के ए अब्बास ने लिखा है, के ए अब्बास, याद रखियो। 9th क्वेश्चन है who came to the inaugurate the primary school for girls, ठीक है। कौन आया सी, तहसीलदार आया सीगा। तो देखो 10th किया वेयर वर पोलिस ब्रदर सेंट टू स्टडी द सिटी, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 11th क्वेश्चन हैगा व्हाट वाज द नेम ऑफ पोलिस ओल्ड काउ, लक्ष्मी, पुराने गाय का नाम लक्ष्मी था। उसके बाद 12th क्वेश्चन हैगा डैश वाज पोलिस एल्डेस्ट सिस्टर, राधा, ठीक है, सब तो बड़ी राधा सी। उसके बाद देखो पोली हैड नाइदर गुड लुक और नॉर इंटैलीजेंस, ठीक है, आही दोनों चीज़ां नहीं सीगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, बाकी सब कुछ सी। उसके बाद देखो 24th किया हाउ ओल्ड वाज पोली व्हेन मंगला वाज मैरिड एंड ए न्यू प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन, वो 7 साल दी सी, ओके। तो देखो पोली स्कूल्स टीचर वाज ए डैश वूमेन, बहुत ही काइंड हार्टेड वूमेन सी, काइंड वूमेन सी, ओके। 16th क्वेश्चन हैगा पोलिस टीचर गिव हर ए बुक, जो दोनों बुक ਦਿੱਤਾ ਸੀ बहुत ही खुश हुई सी मेरी तरह,
मैं भी खुश होया सी ਜਦੋਂ मैं फर्स्ट टाइम बुक खरीदी सी तो 7th ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦ ਅਦਰਸ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇਡ ਫਨ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੈਮਰਡ ਉਹ ਹਕਲਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ 24 ਸੀਗਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਲ ਡੂ ਗਰੋਸਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ठीक है वेल टू डू ग्रोसर ओके 25th देखो पुलिस फादर रामलाल वॉज ए नंबरदार मतलब फादर नंबरदार सीगा ठीक है उस तो बाद देखो 26 किया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट किया कि बिशंबर वॉज हैप्पी टू सी पुलिस प्रीटी फेस हैप्पी नहीं होया सीगा बिल्कुल नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ओल्ड एज मैन ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ठीक है सो देखो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 27th ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਡੋਰੀ ਡਿਡ ਬਿਸ਼ੰਬਰਸ ਡੈਮੇਜ ਫਰੋਮ ਡਿਮਾਂਡ ਫਰੋਮ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 5000 ਰੁਪੀਸ ਦੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ 28 ਦੇਖੋ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ਮੈਨ ਮੀਨ ਠੀਕ ਆ ਕੌਂਟੀਪੇਟਲੇ ਓਏ ਕੌਂਟਿਮਪਟੀਵਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗ੍ਰੀਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 29th ਪੁਲਿਸ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੈਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ 24th ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਫਲੰਗ ਡੈਸ਼ ਇਨਟੂ ਦ ਫਾਇਰ ਦ ਗਾਰਲੈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25th ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਡੈਸ਼ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਰ ਟੀਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਰ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 26 ਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡਿਡ ਰਾਮਲਾਲ 7 ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 7ਵੀਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨੇ ਭੋਲੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 27th के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट किया बिशंबर वॉज ए विंडोवर विंडोवर मतलब विंडोवर समझ गया ना वही सीगा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ਪੁਲਿਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਟਿਲ ਦ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਪਸ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਥੀਸ ਗ੍ਰੈਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या 6 ਹੈਗਾ हैव यू गॉट एनी मनी ठीक है इतने एनी होना है मतलब 7 ਹੈਗਾ I saw many children ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ I saw many children in a park ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ dash house is mine that house is mine ठीक है उसके बाद देखो 10th की है he lost dash he dash friends he had the few friend okay dash sunrises in the east the sunrises याद रखो ये भी आंदा ਹੁੰਦਾ है ठीक है और तो बाद देखो डैश टीचर्स गेव डैश ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट शी इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स ए फ्यू फ्रेंड्स ठीक है और तो बाद कुड यू पास मी डैश द साल्ट ईजी आ तुसीं पुछ के भी कर सकते हैं ठीक है इन्ना कुछ ये समझाने वाला तो है नहीं गा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस कदे टू लगाना है कदे रिमूव करना है ठीक है सो मे बी कि तुहाडे टीचर जां तुसीं एक दूसरे तो पुछ के कर लो है ना दिस इज ग्रामर पोर्शन सो व्हाट ए ग्रेट शॉट ठीक है इट इज़ अ ग्रेट शॉट इनू आप बनाना व्हाट ए ग्रेट शॉट नरेशन करना है नरेशन में देखो ही सैड दैट ठीक है दैट लगा देना होंगे ये ठीक है याद रखियो बस दैट लगा दो बाकी तो पूरा रूल ही सीखना पैना तुहानू देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रांसलेशन करना ट्रांसलेशन भी तुम कर ही लोगे तुम बहुत इंटैलीजेंट बच्चे हो आई नो ठीक है सो बिलीव इन योर सैल्फ यार तुम कर सकते हो तुम वधिया करोगे उस तो बाद एक तो पैसेज आना है तुहानू पता है कि पैसेज नू रीड करना है देखो मोस्ट ऑफ द इंडियन वेकेड इधर साड़ा कोई आ गया है ठीक है इन्हें रोला पा रहा है कोई बेचने वाला आया सो इस वीडियो नू बंद करते हैं हाँ तुम अनसीन पैसेज तो कर ही लोगे ठीक है जिदा मर्जी का है सो कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग एंड बने रहो मौज करते रहो पेपर बढ़िया करके आयो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बहुत बढ़िया पेपर करके आयो ठीक है सो कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग